गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गाज लॉ और गाज फ्लक्स थ्योरम। एक्चुअली गाज जो थे, थोड़ा सा गाज जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। हिज फुल नेम वाज जॉनसन कार्ल फ्रेडरिक गाज। ही वाज बोर्न ऑन 30 April 1777 at Brunswick in Germany. He was born in a middle class or a lower middle class family, and his father was a laborer gardener, but he was uh, uh, he was a child with high IQ, and he made a very significant contribution to a variety of fields in mathematics and physics like number theory, algebra, statistics, differential geometry, and electrostatics and astronomy, etc. In collaboration with William Weber, he worked on the measurement of the Earth's magnetic field and invented the first electric telegraph. And in recognition to his contribution to the theory of the electromagnetism, the international unit of the magnetic induction, that is हम उसको कहते हैं CGS, unit of the electromagnetic induction of the CGS unit of magnetic induction is known as Gauss. अब now Gauss law or Gauss flux theorem is a law of physics, and this lies about the relationship between the electric charge and the resultant electric field. And this law was created by Carl Friedrich Gauss in the year 1835, but it was published in 1867. And Gauss law or the Gauss flux theorem is one of the four Maxwell equations, and the other three are the Gauss law of magnetism, the Faraday law of induction, and Ampere's circuital law. अब हम आते हैं अपने सीधे आज के टॉपिक पर। तो Gauss law or the Gauss flux theorem, it was given by Gauss, and it states that the statement of this Gauss law or Gauss theorem is that the total flux, it states that the total flux over a closed surface S in vacuum is equal to 1 by epsilon 0 times the total charge that is inside the closed surface S. That is, if phi E. Actually, the total flux is written by phi E, and it is equal to 1 by epsilon 0 into the total charge. If it is Q, then phi E is equal to 1 by epsilon 0 into Q. It is the statement of Gauss law. Now let us explain it furthermore. Now I want to give a small definition of some there's a one term which is used very frequently in electrostatic, that is Gaussian surface. एक Gaussian surface की टर्म काफी सारी यूज इसमें होएगी। और Gaussian surface क्या होता है? एक ऐसा छोटा सारा surface, the surface which is chosen to calculate the surface integral, it is called as the Gaussian surface. अब काफी सारा सरफेस हमारे पास होएगा, उसमें से जो हम छोटा सा सरफेस चूज करते हैं सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए, उसको गाउसियन सरफेस कहा जाता है। और गाउसियन सरफेस ऐसा सरफेस होता है जहां पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है, एक ही जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होएगी उस पूरे गाउसियन सरफेस पर। जितना सारा हमने सरफेस जो हमने चूज किया है उस सरफेस के बीच में हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होएगी। Now let us consider a sphere, a closed surface which is in the form of sphere in which we are having plus Q charge at the center of the sphere, and the radius of the sphere is R.
ये इसकी आर आ गई, इसकी क्या रेडियस, ऐसे करके। नाउ सपोज दैट, अब इसके ऊपर अगर हम, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी तो इसके सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर पे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाय, किसके बराबर हो जाएगी, E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 into Q divided by R square into R unit vector, where R unit vector, it is a unit vector and its direction is in which, इसकी डायरेक्शन किधर को होनी है। आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो तब आपने कहा था कि अगर ये Q जो है तो ये 0 से ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी डायरेक्शन किधर को होती है, आउटवर्ड की तरफ होती है। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन कहां होनी है, आउटवर्ड। अगर मैं यहां ही आपको दिखाना चाहूं तो इसकी डायरेक्शन इधर को हो जानी है, ऐसे हो जाएगी E की डायरेक्शन। एंड सो R is a unit vector which is directed away from plus Q, इस Q से बाहर की ओर इसकी जो डायरेक्शन है वो होएगी। Now let us consider a small area element on the surface of the sphere which is ds। अब ds एक स्मॉल एक एरिया वेक्टर, सपोज कीजिए हमने यहां पर ये देखो ये ऐसे मैं शो कर देता हूं, छोटा सा एक यहां पर एक हमने जो है सरफेस जो चूजन कर लिया, जिसको जैसे मैंने अभी आपको बताया है जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ द एरिया वेक्टर व्हिच इज गिवन बाय ds। और ds किसके बराबर होता है, एरिया वेक्टर हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, पिछले आपने लेक्चर में। तो ds किसके बराबर होता है, ds इनटू यूनिट वेक्टर n, where n is a unit vector which is normal to the plane of the ds। तो अगर ये ds है, ये ds ये वाला एरिया है, तो यहां से यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर को ही होएगी, क्योंकि ये जो हमारा इसके ऊपर छोटा सा हमने एरिया वेक्टर जो सपोज कर लिया है, अगर ऐसे गोल हमारा स्फीयर है तो यहां पर हमने छोटा सा एरिया वेक्टर जो है हमने चूज किया, दैट इज अ गॉसियन सरफेस। अब इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहीं से बाहर को ही होएगा, तो इसलिए इस n की डायरेक्शन और ये r जो है, r जो यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन दोनों की सेम होनी है। ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एंड सो E डॉट ds किसके बराबर हो जाएगी, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू ds किसके बराबर हो जाएगा, पहले इन दोनों का हम पूरा करके लिखते हैं। E किसके बराबर आ गया, E बराबर आ गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q बाय R स्क्वायर इनटू R यूनिट वेक्टर इनटू, अब ds किसके बराबर था, ds आ गया हमारे पास ये ऐसे ds का मैग्नीट्यूड एंड देन द यूनिट वेक्टर n which is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q बटे R square into ds में ऐसे लिखता हूं, और इस R यूनिट वेक्टर को और n यूनिट वेक्टर को एक साथ में लिख देता हूं। अब R और n जो है ये किसके बराबर आ जाएंगे, ये आएगा 1 by 4 pi epsilon 0 into Q बटे R square into ds into R dot n किसके बराबर होएगा जी। अगर आपको डॉट वेक्टर अच्छे से दिमाग में क्लियर है तो एक झटके में आप निकाल लेंगे। R डॉट n इज इक्वल टू इनका पहले मैग्नीट्यूड, R का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो 1 इनटू n का यूनिट वेक्टर 1 इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन R एंड n। अब R भी उधर को है, n भी उधर को है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 एंड दैट इज इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा पूरा, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा E डॉट ds, E डॉट ds इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon 0 Q बटे R स्क्वायर इनटू ds इनटू 1। अब जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज हमारी सेम की सेम ही रहनी है। अब ये आ गया आपका क्या, इस पूरे स्फीयर पर छोटा सा हमारा हमने जो गॉसियन सरफेस लिया था,
तो यहां पर इसके कारण पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला और टोटल हमारा फ्लक्स कितना हो गया उतने छोटे सारे के कारण। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे सफेयर के कारण, पूरा सफेद जो हमारा है उसके कारण निकल जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस इंटीग्रेट दिस इक्वेशन फर्स्ट। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट over the closed sphere, over the closed spheres we get। इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आ जाएगा 1 बाय 4 pi epsilon 0 into q divided by r square into ds। अब यहां से देखिए जो जो चीजें कांस्टेंट हैं उनको आपको बाहर निकाल लेना है, जो वेरिएबल है उसको अंदर ही रहने देना है। तो यह आ गया सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 बाहर into q बटे r स्क्वायर भी बाहर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds ऐसे आएगा क्योंकि सरफेस ऐसे है विद रिस्पेक्ट टू ऐसे ही हमारी इंटीग्रेशन हो रही है, इससे बाकी सारी चीजें बाहर आ जाएगी, अंदर सिर्फ बचेगा s और रिटर्न बचेगी। एंड इट इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon 0 into q बटे r स्क्वायर into इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ds क्या था, हमने उस पूरे सफेयर पर छोटा सारा एरिया चूज किया था, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा सरफेस एरिया ऑफ द सफेयर बनेगा। जो हमारा सफेयर है उसका पूरे सफेयर का सरफेस एरिया। एंड यू नो दैट द फार्मूला of the surface area, total surface area of a sphere, it is given by 4 pi r square। 4 pi r square होता है ये 4 pi r square। तो which is equal to, अब यहां से 4 और 4 कैंसिल हो गया, पाई और पाई कैंसिल हो गया, r square और r square कैंसिल हो गया, तो जवाब हमारे पास बचा q बटे एप्सिलॉन। ये आ गया हमारा phi e is equal to q बटे epsilon 0। Now if there are n charges lying in the sphere which are q1 q2 q3 and so on up to qn, if there are n charges lying inside the sphere and due to these charges the electric flux which is present on the sphere of the sphere on the surface of the sphere is phi e1, phi e2, phi e3 and so on up to phi en। Then the total electric flux over the closed surface of the sphere due to all these charges is equal to phi e will be equal to phi e1 plus phi e2 plus so on plus phi en, and it will be equal to अब phi e1 किसके बराबर आ जाएगा 1 by epsilon 0 into q1 प्लस ये आ जाएगा 1 by epsilon 0 into q2 प्लस 1 by epsilon 0 into q3 प्लस so on प्लस 1 by epsilon 0 into qn। अब हम जानते हैं कि टोटल charge is equal to the vector sum of the total charges, and therefore is equal to, हम क्या करेंगे यहां से epsilon 0 आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा q1 plus q2 plus so on plus qn, which is equal to 1 by epsilon 0 into capital Q, where capital Q is equal to q1 plus q2 plus q3 plus so on plus qn, that is the total charge within the closed sphere, and so we can write it that the total flux over the closed sphere
over the closed surface of the sphere, that is phi e is equal to closed surface integral of E dot ds, which is equal to 1 by epsilon 0 into Q, and this is the Gauss law or the Gauss flux theorem. It proves the Gauss flux theorem. That is, जो हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था कि the total flux over the closed surface in the vacuum is equal to 1 by epsilon 0 times the total charge, that is Q, inside the closed sphere. It was all about the Gauss law and proof of the Gauss flux theorem. Now, अब इसके साथ छोटा सा एक कंसेप्ट और आता है. आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिड्यूस or the derive Coulomb law of electrostatics from Gauss law, or the deduction of Coulomb law from the Gauss law. So, deduction of Coulomb law from Gauss law. My dear students, let us consider a point charge plus Q placed at the center of a sphere or the closed sphere of radius r. Now the angle between E and R is equal to 0, and according to Gauss law, phi E is equal to closed surface integral of E dot ds, and it is equal to Q times 1 by epsilon 0, that is 1 by epsilon 0 into Q, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं E into ds into cos of 0 is equal to Q बटे epsilon 0, and the line integral, surface integral of E dot ds into cos of 0 is equal to Q बटे epsilon 0. अब ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E into ds into 1 और 1 is equal to Q बटे epsilon 0. अब E यहाँ से बाहर निकालेंगे तो E into इंटीग्रेशन ऑफ ds is equal to Q बटे epsilon 0. अब E into इंटीग्रेशन ऑफ ds, अब ds है उसका स्मॉल एरिया वेक्टर ऑफ द गॉसियन सरफेस, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बनेगा. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, एंड देयरफॉर E into 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q बटे एप्सिलॉन 0. तो अब यहां से E इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये चला जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इधर जाकर के नीचे, तो 1 बाय 4 पाई r स्क्वायर इनटू Q बटे एप्सिलॉन 0 ऐसे आएगा. लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, बट वी नो दैट E इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, F बटे Q0 के बराबर होती है जी. तो अगर F डिवाइड बाय Q0 होती है तो F किसके बराबर हो जाएगा Q0 इनटू E. तो इसलिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लो. इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बनेगी, एंड सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, और इक्वेशन फर्स्ट को यूज करेंगे हम, इसमें लगा लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड. ऐसे कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा. तो हमारे पास क्या आएगा, F इज इक्वल टू Q0 इनटू E की वैल्यू जहां से लिखिए, ये आ गया 1 बाय 4 पाई r स्क्वायर इनटू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. अब इसी को थोड़ा सीधा करके लिखना है, ये Q इनटू Q0 को एक साथ लिख लेंगे, यहां जो 1 बाय 4 पाई r स्क्वायर को बाद में लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट को पहले, एप्सिलॉन 0 इनटू Q0 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q0 divided by r square, and this was the Coulomb law.
ये तो कूलम लॉ था, इसलिए ये हमने प्रूव कर दिया कि हाउ वी कैन रिड्यूस द कूलम लॉ फ्रॉम Gauss law. And my students, it was all about the Gauss law or Gauss flux theorem and the deduction of Coulomb law from Gauss law. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो इसको जो और आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई समझ ना आई हो चीज़, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम ट्राई करेंगे आपको आपका जो कन्फ्यूज़न होगा, जो आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह होगी, उनको हम अच्छे से रेक्टिफाई कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। हैव अ वेरी वंडरफुल डे। स्टे होम, स्टे सेफ।